یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو روزانہ اپنے گاؤں کے قریب جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتی تھی۔ وہ ایک پرسکون جگہ تھی جہاں ایک پرانا کنواں بھی تھا۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ کنواں صدیوں پرانا ہے اور اس کے آس پاس عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں، مگر فاطمہ کو ان باتوں پر زیادہ یقین نہیں تھا۔ وہ روز کی طرح بکریاں لے کر وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ایک نوجوان وہاں کنویں کے پاس کھڑا ہے۔ وہ پہلے کبھی اس علاقے میں کسی اجنبی کو نہیں دیکھتی تھی، اس لیے حیران ہوئی۔ نوجوان نے اس سے پوچھا، یہ کنواں کب سے یہاں ہے؟ فاطمہ نے ڈرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، ہمیشہ سے یہی سنا ہے کہ یہ بہت پرانا ہے۔ مگر آپ کون ہیں؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نوجوان مسکرایا، مگر کوئی جواب دیے بغیر کنویں کے اندر جھانکنے لگا۔ فاطمہ کو یہ سب بہت عجیب لگا، مگر وہ زیادہ دیر وہاں رکی نہیں اور بکریوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر وہ بکریاں لے کر واپس جانے لگی، مگر اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی ایک بھاری، گہری آواز گونجی، اپنا حجاب ٹھیک کرو۔ فاطمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالا اور تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے معاہے کے سوالوں کے جواب دینے سے گریز کیا اور بس یہی کہا، اب ہی تو کہتی ہیں نہ کہ مغرب سے پہلے گھر آ جایا کرو۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو ایک عجیب سا خواب دیکھا، ایک دھندلا چہرہ، سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں اور وہی آواز، آج کے بعد تمہارے سر سے حجاب نہ اترے۔ ڈر کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے امواہے سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ مگر امواہے نے کہا، مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ اگلے دن جب وہ جنگل پہنچی تو وہاں کا ماحول بدلا بدلا سا تھا۔ کنویں کے قریب ایک غیر معمولی خاموشی تھی، جیسے وہاں کوئی ہوتا ہی نہ ہو۔ مگر جو ہی وہ بکریاں چرانے میں مصروف ہوئی، اچانک وہی نوجوان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا کچھ پانی مل سکتا ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ فاطمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کل شام تو اس نے اسے وہاں نہیں دیکھا تھا، پھر یہ آیا کب؟ اس نے جلدی سے اپنی پانی کی مشکیزہ اس کی طرف بڑھا دی۔ نوجوان نے پانی پیا اور نرمی سے کہا، ہر بات پر پریشان مت ہو جایا کرو، اور جہاں تمہاری امواہ رشتہ طے کر رہی ہیں وہیں شادی کر لینا، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ سن کر فاطمہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے حیرانی ہوئی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ آج اس کے رشتے والے آ رہے ہیں۔ جب اس نے دوبارہ نوجوان کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ اماں مہمانوں کو بٹھا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، ایک عورت نے کہا، بہت خوبصورت ہے۔ پھر اس نے ایک نوجوان کی طرف دیکھ کر کہا، جینی، کیسی لگی فاطمہ؟ فاطمہ کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو کنویں کے پاس کھڑا ہوتا تھا۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، یہ تو وہی لڑکا ہے۔ پورا کمرہ حیرت میں ڈوب گیا، مگر جینی صرف مسکرا دیا۔ فاطمہ کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، جینی، جن، جینی، جن، جب جب یہ نام پکارو گی تمہاری مدد ہو جائے گی۔ مہمان حیرت سے فاطمہ کی طرف دیکھنے لگے۔ اماں نے پریشان ہو کر پوچھا، کون لڑکا؟ فاطمہ کچھ کہہ نہ پائی۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں اور وہ اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ وہی شخص کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ وہی تھا جس نے گزشتہ رات کہا تھا، ہر بات پر پریشان مت ہوا کرو، اور جہاں اماں کہہ رہی ہیں وہیں شادی کر لو۔ سامنے کھڑا شخص ہلکے سے مسکرایا اور بولا، فاطمہ، اب تو تم مجھے پہچان ہی گئی ہو۔ اس کی بات سن کر فاطمہ کا خون جیسے جم گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کپکپاتی آواز میں بولی، تم کون ہو؟ سامنے والے نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا اور کہا، میں وہ ہوں
जो तुम्हारी हर पुकार पर तुम्हारे साथ होगा। जैसा कि मैंने कहा था, जब भी हो तुम मुझे पुकारो। फातिमा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अब इसे एहसास हो रहा था कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा था वो कोई आम बात नहीं थी। अलिफा मुआहे और बाकी घर वाले आसी एक आम रिश्ता समझ रहे थे, मगर फातिमा की हालत देखकर अलिफा मुआहे ने नरमी से पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फातिमा ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज गिले में ही अटक गए। वो बस सामने खड़े इस शख्स को देखती रही, जो बदस्तूर हल्की मुस्कुराहट के साथ इसे घोर रहा था। लड़के की मां बोली, बेटा तुम किसी और की बात तो नहीं कर रही? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? फातिमा ने घबराकर फौरन सर हिला दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। औरत मुस्कुरा कर बोली, तो फिर ठीक है, हम आज ही शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। हमें जल्द अज जल्द शादी करनी है। हमारा एक ही बेटा है और हमें उसी की शादी की बहुत ख्वाहिश है। अलिफा मुआहे भी खुश हो गईं। मेरी भी बेटी सबसे बड़ी है। मैं भी उसकी शादी के बारे में बहुत सोच रही थी, मगर फातिमा के दिल में अब भी वही अजीब आवाजें गूंज रही थीं। वो सोच रही थी, आखिर ये सब किया है? रात को उसने तहज्जुद के वक्त दुआ करने का फैसला किया। जब वो नमाज पढ़ने खड़ी हुई तो उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई और भी उसके साथ इबादत कर रहा हो। जब वो कुरान की आयत पढ़ रही थी तो कोई और भी वही अल्फाज दोहरा रहा था। वो खौफ में डूब गई। के लिए हाथ उठाते ही फातिमा को एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। अपनी दुआ लंबी कर लो और अपने लिए बेहतरी मांगो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगी। इस आवाज ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया। इसका दिल गवाही दे रहा था कि जो भी ये वजूद है वो एक नेक रूह है, वरना वो इबादत में शामिल ना होता। उसने अपने नसीब की बेहतरी मांगी, हर वो चीज मांगी जिसकी ख्वाहिश कर सकती थी, और आखिर में कहा, अगर जियनी मेरे हक में बेहतर है तो मुझे वो मिल जाए। मगर बार बार वही आवाजें गूंज रही थीं, जियनी जियनी। इसी सोच में गुम उसने अपना चेहरा हाथों से ढांप लिया और जैसे ही पीछे मोड़ी इसके होश अलिफा गए। पीछे जियनी खड़ा था। फातिमा के मुंह से एक चीख निकल गई, तुम यहां? जियनी मुस्करा दिया, मैं अंधेरे में ही आता हूं, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। और तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो अब हमेशा के लिए मेरे पास आना है। मेरा पूरा घर अंधेरे में डूबा रहता है, तुम वहां कैसे रहोगी? फातिमा के रांगेट्टे खड़े हो गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे तुमसे खौफ महसूस हो रहा है, तुम यहां कैसे आ गए? दरवाजा तो बाहर से बंद था। जियनी हल्का सा हंसा, जिन्नों को दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होती। फातिमा ये सुनकर शशदर रह गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं, तुम एक जिन हो। जियनी ने गहरी नजरें फातिमा पर डाली। अभी तुम्हें सुकून महसूस हो रहा था, अब जब मैंने सच बता दिया तो तुम डरने लगी। मुझसे खौफ न खाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि सच तो यह है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारा ये हिजाब जो हमेशा तुम्हारे सर पर रहता है, मुझे इससे मोहब्बत है। फातिमा की सांसें तेज हो गईं। जियनी ने नरमी से कहा, हमारा रिश्ता आसमान पर तय हो चुका है, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। ये सुनकर फातिमा ने फौरन पीछे हटने की कोशिश की, फिर अचानक दरवाजे की तरफ दौड़ गई। वो अलिफा मुआहे से टकरा गई। अलिफा मुआहे घबरा गईं। बेटी क्या हुआ? कहां भाग रही हो? फातिमा कपकपाते हुए बोली। अलिफा मुआहे, कमरे में जियनी है, वो वही है। अलिफा मुआहे हैरानी से बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जियनी वहां कैसे आ सकता है? फातिमा ने लरजती हुई आवाज में कहा, अलिफा मुआहे, वो इंसान नहीं है,
वो एक जिन है, उसने खुद बताया। ये सुनते ही अलिफा मुआहे के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने गुस्से में आकर फातिमा को एक थप्पड़ मारा और कहा, ये तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में भी हो? अलिफा मुआहे के थप्पड़ की आवाज अभी भी फातिमा के कानों में गूंज रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे मगर वो चुप थी। जिस मां ने इसे हमेशा प्यार दिया, आज वो उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। उसका दिल भारी हो गया था। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकली और अपने काम में लग गई। जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये जेनी चाहता क्या है? वो कौन है? और सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि फातिमा ने इसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। अभी वो ख्यालात में गुम थी कि अचानक किसी ने इसके सामने चंद हजार रुपए रख दिए। उसने हैरत से इन पैसों को देखा और जैसे ही नजर उठाई, उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। सामने कोई और नहीं बल्कि वही जेनी था। वो गुस्से से खड़ी हुई और झटके से इसका हाथ पकड़ लिया। तुम चाहते क्या हो? तुम हो कौन? चले जाओ यहां से। आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मगर जेनी उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा दिया। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर चीज पहले से जानता हो। सोच लो, तुम्हारी अलिफा मुआ तो मुझसे ही तुम्हारी शादी करना चाहती है। और हां, एक बात और, आइंदा उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना जिस तरह आज उन्होंने मेरे इशारे पर तुम्हारे साथ रवैया इख्तियार किया, वैसे ही आइंदा भी करेंगी। मैं इनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दूंगा कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। इसके लहजे में नरमी थी, मगर अल्फाज में एक अजीब सा खौफ छुपा हुआ था। फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी अलिफा मुआ सिर्फ तुम्हारी मां नहीं है, वो मेरी भी मां है। बस अब तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पहले से तय हो चुका है। तुम्हारे इनकार से कुछ नहीं बदलने वाला। सेड लो करना, वरना तुम खुद मजबूर हो जाओगी ये कहने पर कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। इसकी बातें इसे तकलीफ दे रही थी। तुम यहां से चले जाओ। जब मैं ही तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं हूं तो तुम क्यों जिद कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैं एक आम इंसान हूं और एक इंसान के साथ ही शादी करना चाहती हूं। ये सुनकर जिन आग बबूला हो गया। उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे बस 2 मिनट लगेंगे तुम्हें यहां से ले जाने में, फिर तुम बैठी रहना अपनी मर्जी करती हुई। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम मेरी दुनिया में चली जाओगी। मेरी बस्ती में जहां मेरा राज चलता है, वहां तुम मेरे हाथों की कठपुतली बनकर रह जाओगी। लड़की खौफ से कांप गई। उसने गिड़गड़ाते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे कुछ मत करना। मैं जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। जिनकी बात पर मुस्कुरा दिया। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम तो बेवकूफ हो। एक तुम ही तो हो जो मेरे दिल पर राज करती हो। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, मगर प्यार और मोहब्बत से। लेकिन अगर जिद करोगी तो याद रखना मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूं। लड़की ने सर झुकाया और कहा, ठीक है, मैं आज के बाद तुमसे जिद नहीं करूंगी, मगर तुम मुझे कहीं मत ले जाना। मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ, उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। मेरे सर से मेरे बाप का साया उठ चुका है। मेरी माँ अकेली है। खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो। जिन कुछ पिल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी और वो शादी मेरे साथ ही होगी। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा, अपनी माँ से किसी और का जिक्र किया, तो फिर मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। ये कहकर वो अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। लड़की वहीं खड़ी कांप रही थी। वो सोच रही थी कि अब वो क्या करे, किससे मदद मांगे। क्या मलंगी ठीक कह रही थी? क्या उसे वाकई जंगल के नीचे कानवा पर जाना चाहिए? लेकिन इसकी मदद करने वाला तो सिर्फ अल्लाह था। यही सोचकर उसने अपना सामान बांधा और घर की तरफ चल दी, मगर ना जाने क्यों घर जाने का दिल नहीं कर रहा था। रास्ते में एक सरसब्ज मैदान था जहां वो हमेशा दूर से देखती थी, मगर आज वहां जाने का दिल चाहा। वो मैदान में दाखिल हुई। वहां के फूल बहुत खूबसूरत थे, जैसे किसी और दुनिया से आए हों।
उसने सोचा, मैंने पहले कभी भी उन फूलों को क्यों नहीं देखा, वहां कोई माली भी नहीं था, फिर ये फूल यहां आए कहां से? हल्की हल्की हवा चल रही थी, डांसेस बढ़ रही थी और धुंध भी पड़ने लगी थी। तब वहां एक बुजुर्ग आए और आराम से बैठ गए। उनका चेहरा इतना रोशन था कि ज़ैनब की आंखें हैरत से चमक अलिफाट है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, तुम कौन हो? तुम तो बहुत खूबसूरत हो, ऐसा लगता है जैसे बस्तान की शहजादी हो, किसी और दुनिया से आई हो। फातिमा हैरान रह गई और बोली, और मुझे लगता है कि शायद अब भी किसी और दुनिया से। बुजुर्ग हंस पड़े, फिर बोले, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, तुम में वो ताकत है जो दूसरी दुनिया के लोगों को पहचान सकती है। मैं शान जन्नत हूं और मैं यहाँ अपने बेटे की मुआफी मांगने आया हूं। फातिमा के कदमों तले जमीन निकल गई। जब मैं अपनी बस्ती के लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता तो तुम तो फिर इंसानों की बस्ती से हो और मेरे बेटे की पसंद भी हो। मैं जानता हूं कि इसने तुम्हें बहुत तंग किया है, लेकिन इसने ये सब अनजाने में किया है। मैंने इसे बहुत डांटा है, मगर अब मैं तुमसे भी मुआफी मांगने आया हूं। मेरे बेटे को मुआफ कर दो। बेटी, बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम इसे मुआफ नहीं करोगी तो मुझे मजबूरना इसे अपनी बस्ती से निकालना होगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं रह सकता जो इंसानों को डराए। हम तो मोहब्बत हैं और मोहब्बत बांटने वाले हैं, और अगर हमारी बस्ती में कोई ऐसा करता है तो उसे सख्त सजा दी जाती है। बताओ बेटी, क्या तुम इसे मुआफ कर दोगी? इसे यूं समझो कि तुम्हारा बाप तुमसे कुछ मांग रहा है। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। शान जन्नत ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी तो हमारी बस्ती का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। बस्ती में एक नेक इंसान की जरूरत है, क्योंकि हमारी बस्ती पर एक बदिया है और सिर्फ एक इंसान ही हमें इससे निकाल सकता है। इंसान की शादी किसी जिनजादे से हो जाए तभी हमारी बस्ती इस बदिया से पाक हो सकती है। बताओ बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से शादी कर लोगी? क्या तुम हमें इस बदिया से हटा सकोगी? लड़की ये सुनकर शाकिद रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। वो बोली, मैं इस काबिल नहीं हूं और न ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती हूं। मैं ये सब कैसे करूंगी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, खुदा ने तुम में वो ताकत रखी है जिससे तुम ये जिम्मेदारी उठा सकती हो और हमें इस मुश्किल से निकाल सकती हो। क्या तुम नहीं चाहोगी कि जब तुम दुनिया में आई हो तो किसी की मदद करके जाओ? ये तुम्हारी भी नेकी होगी और हमारी भी मदद हो जाएगी। हमें तुम्हारी जरूरत है और मैं जानता हूं कि तुम हमारी जरूरत पूरी करोगी। बोलो बेटी, करोगी ना? बुजुर्ग की इल्तिजा ने लड़की के दिल पर असर किया। वो खुद हैरान थी कि इसे उन पर क्यों तरस आ रहा था। बना सोचे समझे इसका मुंह से निकल गया, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही इसने ये अल्फाज कहे, इसे महसूस हुआ कि वो किसी ट्रांस जैसी कैफियत में है। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसने ये फैसला कैसे किया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इससे जबरना ये अल्फाज कहलवाए हों। फिर अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो बुजुर्ग वहां से गायब हो चुके थे। उसने उधर उधर देखा, मगर वो खूबसूरत बाग जहां वो थी, अब वहां कुछ नहीं था। वो जगह सुनसान लग रही थी। तब एक औरत इसके करीब आई और कहने लगी, लड़की, तुम कौन हो? इतनी खूबसूरत होकर इस सुनसान जगह पर बैठी हुई हो। लड़की ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। इसे यकीन नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। सुनसान जगह? लड़की ने खुद से सवाल किया, ये तो अभी कुछ लम्हे पहले एक हुसैन बाग था। मगर जब उसने दोबारा अर्द गिर्द देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो वाकई सुनसान जगह थी। अब इसे तन्हाई का एहसास होने लगा था, जिससे वो पहले नावाकिफ थी। वो घबरा कर खड़ी हो गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े झाड़ने लगी। इसे खुद से गुस्सा महसूस होने लगा कि वो वीरान जगह पर क्यों बैठी थी। वो भागते हुए घर पहुंची और बगैर कुछ कहे सीधा कमरे में जा घुस गई। इसकी मां परेशान होकर पीछे पीछे आई और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पूछने लगी, फातिमा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा रवैया नहीं अपनाया।
आकर कमरे में क्यों घुस गई हो? सब ठीक तो है ना? लड़की अंदर रो रही थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, कुछ ठीक नहीं है अम्मा, मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी। फिर लड़की ने अपनी अम्मा को सारा माजरा सुनाया। अम्मा ने गहरी सांस ली और पूछा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? लड़की ने जवाब दिया, अम्मा, हम किसी मौलवी साहिब के पास चलते हैं, उनसे कोई वजीफा पूछ लेते हैं या कोई कुरानी आयत जिससे मेरी मदद हो सके। अम्मा ने इसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, हम पास की मस्जिद के मौलवी साहिब के पास चलते हैं। अगली सुबह लड़की और उसकी अम्मा मस्जिद के मौलवी साहिब के पास जाने के लिए निकल पड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब इस परेशानी का कोई हल मिल जाएगा, लेकिन क्या वाकया उनकी परेशानी खत्म होने वाली थी। जब फातिमा ने अपने हालात इमाम साहिब को बताए तो वो भी गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, तुम लोग जुमेरात की रात मेरे पास आओ, मैं देखता हूं कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। फातिमा घर आकर अपनी अम्मा से बोली, मैं कुछ दिन तक काम पर नहीं जाऊंगी। अम्मा ने हामी भर ली और कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है ज्यादा काम की वजह से तेरा दिमाग थक गया हो, इसलिए तुझे ये सब महसूस हो रहा हो। फातिमा ने भी यही सोचा कि हो सकता है ज्यादा काम की वजह से दिमाग थक गया हो, इसीलिए ये सब महसूस हो रहा हो, शायद यही वजह होगी। इसलिए अगले कुछ दिन घर पर ही रही, न कहीं गई और न ही अम्मा ने इसे जाने दिया। आखिरकार जुमेरात की रात आ गई। फातिमा अपनी अम्मा के साथ दोबारा इमाम साहिब के पास गई। उन्होंने बैठने का इशारा किया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। फिर वो गहरी सोच में पड़ गए और बोले, क्या तुम कभी जंगल कुनवे वगैरह के पास गई हो? फातिमा ने सर हिलाया और कहा, हाँ, मैं जंगल में एक कुनवे के पास गई थी। इमाम साहिब ने पूछा, क्या तुम्हें कभी सर में दर्द सांस लेने में मुश्किल महसूस होती है? फातिमा चुप हो गई और झट से सर हिलाकर बोली, हाँ, अक्सर ऐसा होता है, खास तौर पर जब मैं जंगल से वापस आती हूँ। इमाम साहिब ने सर झुकाया और कहा, तब तो यकीनन वो तुम्हारे साथ ही आता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ जो तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। फातिमा ने बगैर किसी जेजेका के हामी भर ली। इमाम साहिब ने इसे सर्किल जिन का वजीफा बताया जो सुबह तहज्जुद के वक्त करना था। हालांकि तहज्जुद के वक्त फातिमा को अजीब सा खौफ महसूस होता था। इसे लगता था जैसे कोई इसके अर्द गिर्द से देख रहा हो और उसके साथ खड़ा होकर इबादत कर रहा हो, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे 7 दिन तक ये वजीफा किया। आखिरी दिन जब इसने वजीफा मुकम्मल किया तो उसे महसूस हुआ कि इसके कंधों से कोई भारी बोझ हट गया है। इससे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी ने इसकी तकलीफ छीन ली हो। फौरन इमाम साहिब के पास गई और बोली, मौलवी साहिब, मैंने 7 दिन का वजीफा मुकम्मल कर लिया है। इमाम साहिब मुस्कराए और बोले, अब 7 दिन तक सूरा रहमान की तिलावत करो। अपने पास एक पानी का गिलास रखना। जब सूरा रहमान मुकम्मल हो जाए तो 3 बार दिल में मोहब्बत के साथ अल्लाह कहना और फिर इस पानी को पी लेना। इंशाअल्लाह इसके बाद तुम्हें इस रात कोई परेशानी नहीं होगी। फातिमा ने ऐसा ही किया। 7वें दिन जब वो सोई तो उसे ख्वाब में जेनी नाम का एक जिन नजर आया। उसने नरमी से कहा, अच्छा होता अगर तुम मेरी दुनिया में मेरे साथ आ जाती, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा। तुम जब भी मुझे दिल से याद करोगी मैं तुम्हारे अर्द गिर्द ही रहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे डरती हो, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये मेरा तुमसे वदा है। फातिमा ख्वाब में ही सहम गई। जेनी ने आगे कहा, तुम्हारी पाकीज़गी, तुम्हारा हिजाब, तुम्हारी इबादत, यही वो चीजें थीं जिनकी वजह से मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। मैं तुम्हारे जिस्म से नहीं बल्कि तुम्हारी रूह से मोहब्बत करता हूं। इसीलिए मैं तुम्हें आसानी से छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे मोहब्बत से याद करना। फिर वो आहिस्ता लहजे में बोला, स्टोर रूम में खिड़की के पास एक खूबसूरत माला रखी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आया करूं तो इस माला को अपने गिले में डाल लेना और जब भी मुझे याद करना हो इसे हाथ में पकड़ लेना, मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। फातिमा घबरा कर जाग गई। उसने फौरन अपनी अम्मा को जगाया और सारी बात बताई।
अम्मा चौंक गईं और बोले, चलो इमाम साहिब से पूछते हैं कि ये सब क्या है। जब इमाम साहिब के पास पहुंची तो उन्होंने फातिमा की पूरी बात सुनी और संजीदगी से बोले, ये कोई बुरी रूह नहीं थी बल्कि नेक जिन्नात में से था, इसलिए इसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि तुम्हारी मदद का रास्ता भी दिखा दिया। अगर कभी तुम्हें इसकी जरूरत महसूस हो तो उसे याद कर सकती हो, वो तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएगा। फिर उन्होंने एक और बात कही, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा और इसका रिश्ता नेक राह पर कायम रहे तो हर जुमेरात को इसी स्टोर रूम में बैठकर सूरत अल जिन की तिलावत किया करो। इससे न सिर्फ तुम्हारी मदद होगी बल्कि इसकी भी। फातिमा अब समझ चुकी थी कि इसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो कोई बड़ा ख्वाब नहीं था बल्कि एक हकीकत थी, और अब इसे अपनी इबादत और अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमें मजीद बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देती है।